Hello students, let's see some question from exercise 3.4. The first type question is we have to find the inverse of a matrix. So by using elementary operations we have to find the inverse of this matrix A 1 minus 1 2 3. So we use the elementary operations to find the inverse of the so let A equals to IA. So let put the value A 1 minus 1 2 3 identity matrix 1 0 0 1 into A. Now we apply the elementary operations. First we make that is already 1 first element, so now we have to make this 2 as 0, then 3 as 1 and minus 1 as 0. We apply the operation in sequence first, second, third, fourth. First R2 minus 2 R1. First we multiply second row by 2 and subtract from the second row. First we multiply first row by 2, then we have to subtract it from second row. So 2 minus 2 is 0, 2 1 is 2 or 2 minus 2 is 0, and 3 minus 2 is 3 minus minus plus 2 is 5. So we get 1 minus 1 0 5. Same operation we have to apply in the right hand side. So 1 multiplied by 2, 0 minus 2 is minus 2 and 1 plus 0 is 0. So that we apply the first operation and first column is prepared 1 0. Now we have to make this 5 as 1. ये 5 को 1 बनाना है. So we divide this second row by 5 so that it's become 1. Second row को 5 से divide कर देते हैं, तो R2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 5 R2. ये कह रहे हैं R2 को हमने सेकेंड रो को 5 से डिवाइड करना है. So let apply the operation. So it's become 1 0 minus 1 1. 5 upon 5 1 हो गया, and in right hand side it is minus 2 upon 5 1 upon 5. We divide second row by 5. So only one element left, that is minus 1. Now we have to make minus 1 as 0. So what we do, we add R2 in R1. R1 में R2 फर्स्ट रो में सेकेंड रो को ऐड कर देते हैं, so that we get the 0. So R1 plus R2 we apply this operation. So we get 1 plus 0 is 1, minus 1 plus 1 0. So 1 0 0 1, that identity matrix. Same operation we have to apply on the right hand side. R1 plus R2. So we have 1 minus 2 by 5 is 3 by 5, 0 plus 1 by 5 1 by 5 बन जाएगा. So this is our A inverse. Left side में identity matrix आ गया. So this is the value of A inverse. 3 by 5 1 by 5 minus 2 by 5 1 by 5. And you can check your answer by multiplying A and A inverse. After multiplying A and A inverse, if you get identity matrix, then your solution will be verified. Let's see one more example. Question 14th. By using elementary operation, we have to find the inverse of matrix A 2 1 4 2. We have to find the inverse of this matrix. So using elementary operation, A equals to IA. So 2 1 4 2 identity matrix 1 0 0 1 8. Now this time we will use operations on column elementary operations. अभी तक रो पे किए थे, अब कॉलम पे करेंगे. So same method will be there. We have to make identity matrix. We have to convert A as a identity matrix. तो जब रो ऑपरेशन आते थे हम कॉलम प्रिपेयर करते थे, and in this we have to prepare the row. So first is C1 minus C2. उसको 2 है जो फर्स्ट एलिमेंट, उसको 1 बनाना है. तो सेकेंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस करेंगे, फर्स्ट कॉलम में से सेकेंड कॉलम माइनस करेंगे. 2 minus 1 is 1 and 4 minus 2 is 2. First column minus second column. Same on the right hand side. 1 minus 0 is 1, 0 minus 1 is minus 1. So that is C1 minus C2
applied on both side of matrices. So now when we use operation on columns we have to prepare the rows. तो फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट 1 आ गया, नाउ वी नीड सेकंड 0, उसको 0 बनाना है 1 को, तो वी अप्लाई C2 माइनस C1. नाउ दिस टाइम वी सब्ट्रैक्ट C2 माइनस C1, सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस करेंगे. सो वी गेट 1 माइनस 1 इज 0 एंड 2 माइनस 2 इज 0. सेम ऑपरेशन वी अप्लाई ऑन द राइट हैंड साइड. तो 0 माइनस 1 इज माइनस 1 एंड 1 प्लस 1 हो जाएगा 2. Now look here, whenever you are finding inverse of a matrix by elementary operation and entire element, all the elements of a row or column are 0, in that case inverse will not exist. You can see second column में दोनों एलिमेंट 0 0 हो गए, तो A inverse does not exist. पूरी रो किसी रो के सारे एलिमेंट या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 0 आ जाते हैं आफ्टर अप्लाइंग सम ऑपरेशंस, then inverse of that matrix does not exist. So here A inverse does not exist. Next question of 3.4 now. Question number 17th. By using elementary operations we have to find the inverse of this given matrix. The matrix A is given 2 0 minus 1 5 1 0 0 1 3. We have to find its inverse using elementary operation. Let's start. A equals to IA, so we put the values of A and identity matrix. Now first we have to make that first element 1. जो first element है फर्स्ट कॉलम में उसको 1 बनाना है, बाकी नीचे वाले दो को 0 बनाएंगे. सेम सीक्वेंस रहेगा. फर्स्ट वी मेक 1 इन ईच कॉलम देन 0. सो R1 मल्टीप्लाई बाय हाफ R1. तो फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड करते हैं, पूरी रो को वी डिवाइड बाय 2. सो वी हैव 1 0 माइनस 1 बाय 2, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया. सिमिलरली ऑन राइट साइड हाफ 0 0. फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई किया हमने R1 मल्टीप्लाई बाय हाफ, so that we get 1 in that. फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट 1 बन गया. बाकी एलिमेंट को 0 बनाना है, तो यहाँ पे जो 5 है नेक्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इन फर्स्ट कॉलम, उसको 0 बनाना है. यू हैव टू मेक इट 0. ये 5 है जो, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, यानी R1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको R2 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है. एक बार मैंने जो पीछे लास्ट स्टेप था वो यहाँ पे लिख दिया है. तो हमें 5 को 0 बनाना है, तो फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड रो में से माइनस कर देंगे. वी अप्लाई दिस ऑपरेशन. R2 माइनस 5 R1. R1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 में से माइनस कर देंगे. सो लेट अप्लाई दिस ऑपरेशन. तो हमारे पास सेकंड कॉलम बन जाएगा 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 0 0 और 0 प्लस 5 बाई 2 5 बाई 2. तो सेकंड कॉलम आपका बन गया 0 1 5 बाई 2. सेम ऑपरेशन वी अप्लाई ऑन राइट साइड. तो ये हो जाएगा 0 माइनस 5 बाई 2 माइनस 5 बाई 2 आ गया, एंड रिमेनिंग इज सेम 1 0. सो दिस इज नाउ फर्स्ट कॉलम इज प्रिपेयर्ड 1 0 0. सेकेंड कॉलम में ऑलरेडी 1 इज देयर, ओनली 1 एलिमेंट इज 1, उसको 0 बनाना है. तो नाउ वी अप्लाई ऑपरेशन R3 माइनस R2. R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिल जाएगा. तो ये हो जाएगा थर्ड रो आपकी 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0 और 3 माइनस 5 बाई 2 इज 1 बाई 2. थर्ड रो में से सेकंड रो माइनस की. सिमिलरली ऑन राइट हैंड साइड 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 बाई 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 इज 1. R3 माइनस R2. ये ऑपरेशन अप्लाई किया हमने, थर्ड रो में से सेकंड रो को माइनस कर दिया. नाउ ये वापस मैंने लास्ट स्टेप था जो वो यहाँ लिख दिया, एक बार इसको यूज़ करना है हमें. तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम प्रिपेयर हो गया. नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द थर्ड कॉलम. थर्ड कॉलम में फर्स्ट वी नीड 1, जहाँ पे 1 बाई 2 है थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट.
सो वी मल्टीप्लाई दिस बाय 2, R3 मल्टीप्लाई बाय 2, R3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0 0 1, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 2 0 और हाफ इंटू 2 इज़ 1, तो वहाँ पे 1 चाहिए था। सेम वी मल्टीप्लाई ऑन द राइट हैंड साइड, 5/2 मल्टीप्लाई 2 5 आ गया, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 -2 और 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2। सो हमारा वहाँ पे 1 मिल गया, थर्ड एलिमेंट इन थर्ड रो। नाउ वी हैव टू मेक अदर 2 एलिमेंट 0, 5/2 है उसके ऊपर उसको 0 बनाना है और -1/2 है उसको 0 बनाना है। सो फर्स्ट ऑपरेशन R1 प्लस हाफ R3, थर्ड रो को हाफ से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड करेंगे, थर्ड रो को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी एडेड टू फर्स्ट रो। सिमिलरली थर्ड रो को 5/2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड रो में ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे सॉरी, थर्ड रो को मल्टीप्लाई बाई 5/2 एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड रो, R2 माइनस 5/2 R3। तो दो ऑपरेशन एक साथ लगाएंगे, फर्स्ट रो में से थर्ड रो को माइनस करना है, ऐड करना है हाफ से मल्टीप्लाई करके, और सेकंड रो में 5/2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो को ऐड करना है। सो वी गेट दिस आइडेंटिटी एलिमेंट, हाफ से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो -1/2 प्लस हाफ 0 हो जाएगा, और 5/2 से मल्टीप्लाई ऐड करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5/-2 5/2 0 हो जाएगा। सेम ऑपरेशन वी हैव टू अप्लाई इन द राइट हैंड साइड, तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 1 1, -15 6 -5 5 - 2 2। ये दो ऑपरेशन एक साथ गए हैं, एक R1 पे दूसरा R2 पे, एक में हाफ R3 ऐड किया, दूसरे में -5/2 R3 सब्ट्रैक्ट किया है। सो नाउ यू कैन सी इन लेफ्ट साइड वी हैव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर A इनवर्स, हमें A इनवर्स आ गया है हमारा। सो A इनवर्स इज इक्वल टू 3 - 1 1, -15 6 -5 5 - 2 2। You can check your solution here by multiplying A inverse to A को A inverse जो मैट्रिक्स की बने उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू ऑलवेज गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं अपना सॉल्यूशन। सो दीज आर सम क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4 इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4 3.4 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम जो थोड़े अलग से हैं। तो फर्स्ट वन इज मैट्रिक्स A इज गिवन 0 0 1 0 एंड वी हैव टू शो दैट AI प्लस BA पावर n इज इक्वल टू A पावर n मल्टीप्लाई I प्लस n A पावर n -1 BA। यहाँ पे A एक मैट्रिक्स है और I इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। A मैट्रिक्स गिवन ही है हमें और I इज आल्सो ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब इसको हमें प्रूव करना है। देयर आर टू मेथड टू डू दिस क्वेश्चन, द वन इज यू कैन यूज बाइनोमियल थ्योरम, द अदर इज बाय PMI। तो हम बाइनोमियल थ्योरम से यूज करते हैं। तो पहले A स्क्वायर फाइंड करते हैं। A स्क्वायर हो गया A इंटू A 0 1 0 0 0 1 0, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट अ जीरो मैट्रिक्स। A को A से मल्टीप्लाई किया, A स्क्वायर फाइंड किया, इट इज़ जीरो मैट्रिक्स। अब आपको A क्यूब फाइंड करना है तो क्या करोगे, A स्क्वायर को फिर A से मल्टीप्लाई करोगे और A स्क्वायर इज ए जीरो मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई टू एनी मैट्रिक्स वी ऑलवेज गेट ए जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। इट्स मीन A3 A4 AN जितनी बार आप मल्टीप्लाई कर लीजिए A क्यूब A4 AN दीज ऑल विल बी जीरो मैट्रिसेस, ये सारे जीरो मैट्रिक्स होंगे। अब आप देख सकते हैं जो शो करना है राइट एंड लेफ्ट साइड है AI प्लस BA पावर n, उसको हम एक्सपैंड करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम आपने 11th स्टैंडर्ड में की है, A प्लस B पावर n बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसको एक्सपैंड करेंगे। ओके, सो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम ये एक्सपेंशन आपके पास आ जाएगा AI प्लस BA इक्वल टू n, यहाँ लिखा है C0, C0 का मतलब NC0 ही है, NC0 A पावर n I पावर n प्लस देन NC1, C1 लिखा है उसको शॉर्ट में, वो NC1 है A पावर n -1 I पावर n -1 इंटू BA यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम।
plus then next is nc2 a power n minus 2 I power n minus 2 b square a square. Similarly the next step, and the last is it is ncn b power n a power n. तो ये हमने एक्सपेंड कर दिया। अब देखिए आपने ऊपर किया है कि ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर ए एन ये सारे जीरो मैट्रिक्स हैं। तो फर्स्ट टू टर्म को छोड़ के, फर्स्ट और सेकंड टर्म को छोड़ के थर्ड टर्म से आप देख लीजिए ए स्क्वायर आ गया, फिर ए क्यूब लास्ट में ए एन, ये सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। सो वी लीव ऑल दीज जीरोज, फर्स्ट थिंग। सेकंड एन सी जीरो होता है वन, यू नो दैट। एन सी वन होता है एन। और जो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसकी कितनी भी पावर हो, आई स्क्वायर आई क्यूब आई एन, दैट ऑलवेज रिमेन एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को खुद से कितने ही बार मल्टीप्लाई कीजिए आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट टू टर्म को छोड़ के बाकी सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। एन सी जीरो है उसको हम वन लिखेंगे क्योंकि एन सी जीरो इज़ वन। सी वन मीन एन सी वन, उसको हम एन लिखेंगे। आई की पावर एन और आई की पावर एन माइनस वन को हम आई लिखेंगे। तो ये आ गया ए आई प्लस बी ए पावर एन इज ए पावर एन, क्योंकि सी जीरो वन हो गया, आई की पावर एन आई हो गया। फिर सी वन हो गया एन, एन सी वन इज़ एन, ए की पावर एन माइनस वन। और जो आपके पास आई आएगा, आई की आई को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए से करेंगे सॉरी, आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए जे मैट्रिक्स आई जे मैट्रिक्स दोनों का मल्टीप्लाई ए आ जाएगा। सो दिस इज द प्रूफ। ए आई प्लस बी ए पावर एन इज इक्वल टू ए रेज पावर एन आई प्लस एन ए रेज पावर एन माइनस वन बी ए। नीचे मैंने लिख दिया सी जीरो वन है, सी वन एन है, आई पावर एन माइनस वन इज वन एंड ऑल रिमेनिंग टर्म विल बी जीरो। आफ्टर फर्स्ट टू टर्म रिमेनिंग टर्म में ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर ए एन तक आ रहा है, वो सारी जीरो हो जाएंगी बिकॉज these all are zero matrices. So this is the question number first of miscellaneous exercise. Let's see the next question. Question number second. If matrix A is given with these element 1 1 1 1, then we have to prove that A power n, A की power n, each element is 3 raised power n minus 1, और where n is a natural number. इसको प्रूव करना है। ए मैट्रिक्स गिवन है और ए एन प्रूव करना है। ए एन की वैल्यू ये होगी 3 पावर एन माइनस वन ईच एलिमेंट एज दैट। 3/3 के मैट्रिक्स हैं, ये एन नेचुरल नंबर है। सो हेयर वी यूज द PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। टू प्रूव इट वी यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो यू नो दैट फर्स्ट स्टेप फॉर एन इक्वल्स टू वन, एन वन के लिए प्रूव करना है। क्या करेंगे, जो ए एन गिवन है उसमें एन की जगह वन पुट कर दिया हमने। इन ईच एलिमेंट वी पुट एन इक्वल्स टू वन। अब 3 की पावर क्या होगी, 1 माइनस 1 0, ईच इज 3 पावर 0 3 पावर 0 एंड यू नो दैट एनी नंबर विद पावर 0 इज़ 1। तो हर एलिमेंट 1 बन गया, सारे एलिमेंट बनेंगे 3 की पावर 0, देन इट्स बिकम इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वल्स टू ए विच इज़ गिवन, ए मैट्रिक्स गिवन है, इक्वल है। सो इट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू 1। ए एन में हमने एन की जगह 1 पुट किया एंड वी गेट ईच एलिमेंट एज 1, जो ए के इक्वल ही है, ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास। सो इट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू 1। ये एन इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है। हाउ वी मूव टू सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम सपोज करते हैं द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के। ये जो स्टेटमेंट है वो एन इक्वल्स टू के लिए ट्रू है, ये हमें सपोज करना होता है, वी सपोज इट। सो लेट इट्स ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के। तो जो ए एन है वी रिप्लेस एन बाई के, वहाँ पे एन की जगह के रख देंगे, तो ए रेज पावर के आ जाएगा 3 की पावर के माइनस 1, ईच एलिमेंट एज 3 रेज पावर के माइनस 1, दैट इट इज़ फर्स्ट इक्वेशन। इसको यूज करेंगे हम आगे, ए के इज 3 रेज पावर के माइनस 1 ईच एलिमेंट। दिस इज द सेकेंड स्टेप। सपोज करते हैं कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के। नाउ इन थर्ड स्टेप वी हैव टू प्रूव दैट it is also true for n equals to k plus 1 when it is given it is true for n equals to k। थर्ड स्टेप में हमें प्रूव करना है कि जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर, सो वी हैव टू प्रूव इट्स ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 when it's true for n इक्वल्स टू k। इसका यूज करके प्रूव करना है। सो वी रिप्लेस n बाई k प्लस 1। अगर जो a n गिवन है हमें उसमें
एन की जगह k+1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 पावर k, क्योंकि a पावर n में क्या था 3 की पावर n-1। जब n की जगह आप k+1 रखोगे तो +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, each element become 3 raised power k। ये प्रूव करना है। सो वी कंसीडर इट्स लेफ्ट साइड a raised power k+1, इट कैन बी रिटन एज a raised power k into a raised power 1। पावर को स्प्लिट कर दिया, a raised power k into a raised power 1। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी पुट द वैल्यू ऑफ a raised power k। a raised power k की वैल्यू क्या थी 3 पावर k-1, 3 k पावर k-1, 3 raised power k-1, ये सारे आ गए एलिमेंट। और a की वैल्यू क्या थी 1 1 1। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पूरी रो का पूरे कॉलम से। क्या आएगा 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1। तो जैसे x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x होता है, तो ये 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर k-1। तो ईच एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास a पावर k+1 इज इक्व टू 3 मल्टीप्लाई 3 रेज पावर k-1। दादा जैसे x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x होता है, जैसे 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1 विल बिकम 3 इंटू 3 रेज पावर k-1। अब यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 1 और k-1, तो पावर को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3 की पावर k-1 प्लस 1, दोनों पावर ऐड कर दी हर एलिमेंट में, 3 रेज पावर k-1 प्लस 1, ये पावर से ऐड कर दिए हमने। तो क्या आ जाएगा a की पावर k+1 इज इक्व टू 3 रेज पावर k बचेगा। यही हमें प्रूव करना था। सो इट्स ट्रू फॉर n इक्व टू k+1। ये n प्लस k1 के लिए ट्रू है। देन बाई PMI an इक्व टू दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। तो ये हमने मैट्रिक्स का क्वेश्चन किया यूजिंग PMI in 3 steps, n equals to 1, then n equals to k, the last one is n equals to k+1। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन था ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। रिमेनिंग क्वेश्चन यू कैन ट्राई योरसेल्फ, ओनली वो क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द मैट्रिक्स x फाइंड करना है, सो दैट x मल्टीप्लाई 1 4 2 5 3 6 x इज ए मैट्रिक्स है। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो x फाइंड करना है मैट्रिक्स। x इज नॉट एलिमेंट, इट इज ए मैट्रिक्स विच वी हैव टू फाइंड। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ x। तो x का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स हो रहा है जिसका ऑर्डर 2 × 3, इसमें 2 रोज हैं, ठीक है। इट्स मीन x में कॉलम कितने होने चाहिए 2 कॉलम, x में कॉलम होंगे 2, तो x का ऑर्डर रहेगा 2 × 2। 2 × 2 क्यों होगा, क्योंकि जो राइट साइड में हमारे पास मैट्रिक्स है दैट इज आल्सो 2 × 3। सो हम सपोज कर लेते हैं लेट x इक्वल टू ए बी सी डी, इट है 4 एलिमेंट, 2 × 2 है ए बी सी डी, ठीक है। x का ऑर्डर विल बी 2 × 2, क्योंकि जो मैट्रिक्स गिवन है लेफ्ट साइड में उसका ऑर्डर 2 × 3 है, तो 2 कॉलम होने चाहिए फर्स्ट थिंग। और जो राइट साइड में आ रहा है उसका ऑर्डर है 2 × 3, इसका मतलब x में कॉलम भी 2 होने चाहिए और रो भी 2 होने चाहिए। सो वी टेक एज 2 × 2 a b c d। नाउ वी पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन दैट गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये x आ गया a b c d, multiply that given matrix 1 2 3 4 5 6 and other is -7 -8 -9 2 4 6। now first we multiply the two matrices on left side a b c d to this matrix. the row is multiplied to column, a b multiply by 1 by 4 1 and 4, so a plus 4b, then a b multiply by second column, so 2a plus 5b, then a b multiply to third column 3a plus 6b. That is how we multiply first row to these 3 columns. Now second row CD is multiplied to all these 3 columns, so C plus 4D, then 2C plus 5D, then 3C plus 6D is equals to this. अब देख सकते हैं जब मल्टीप्लाई किया दोनों के ऑर्डर सेम हो गए 2 × 3 2 × 3। दैट इज द रीजन वाई वी टेक ए एक्स एज ऑफ ऑर्डर 2 × 2। ओके,
2 into 3, 2 into 3. Now we can compare corresponding elements. तो फर्स्ट रो में तीनों एलिमेंट्स में ए और बी है, ए प्लस 4b, 2a प्लस 5b, 3a प्लस 6b, और सेकेंड रो में सी और डी है. सो टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी वी नीड ओनली टू इक्वेशन. तो फर्स्ट टू को हम कंपेयर कर रहे हैं. ए प्लस 4b इज 7 -7 एंड 2a प्लस 5b इज -8. थर्ड को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी नीड ओनली टू इक्वेशन. टू वेरिएबल है तो ही इक्वेशन की जरूरत है. नाउ वी सोल्व दिस. तो यहाँ से ए आ जाएगा -7 -4b. फर्स्ट इक्वेशन से ए इज -7 -4. वी पुट दिस ए वैल्यू ऑफ ए इन सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे पुट कर देंगे. तो 2 इंटू -7 -4b प्लस 5b इक्वल टू -8. सोल्व करेंगे. -14 -8b प्लस 5b इक्वल टू -8. तो -3b आ जाएगा -8 प्लस 5b और -8 प्लस 14 बाई ट्रांसपोज. सो -3b आएगा इक्वल टू 6. तो b आ गया -2. दिस इज द वैल्यू ऑफ b. -3b इक्वल टू आया 6. तो b इक्वल टू -2. नाउ वी पुट दिस वैल्यू ऑफ b इन दैट गिवन इक्वेशन. ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है. पहले हमने कंपेयर किया, उसके बाद b की वैल्यू. अब b की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. ए इक्वल टू -7 -4b. यहाँ पे b की जगह -2 पुट करेंगे. सो वी गेट ए इक्वल टू -7 -4 मल्टीप्लाई बाई -2. वैल्यू ऑफ b की वैल्यू यहाँ पुट कर दी -2. तो ए आ जाएगा -7 प्लस 8. देन फाइनली ए इक्वल टू 1. सो वी गेट टू एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स एक्स. ए 1 आ गया और b -2 आ गया. नाउ वी कंपेयर द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो. c प्लस 4d 2c प्लस 5d इनको कंपेयर करेंगे. तो c प्लस 4d इज 2 एंड 2c प्लस 5d इक्वल टू 4. कोई भी दो कंपेयर कर लीजिए आप. और जैसे इधर सोल्व किया a और b की वैल्यू फाइंड की, वैसे इन दो को इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे. सिंपल. यू हैव ऑलरेडी सोल्व सच टाइप ऑफ इक्वेशन. तो c और d को आप सोल्व करेंगे. c की वैल्यू पुट कर दीजिए सेकेंड इक्वेशन में, वहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी. सो यू गेट c इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू 0. आप सिंप्लीफाई करोगे तो c 2 और d 0 आ जाएगा. सो फाइनली x विल बी 1 - 2 2 0. ये आपके पास आ गया है मैट्रिक्स x जो हमें फाइंड करना था. 1 - 2 2 0. पहले हमने मैट्रिक्स एक्सपोज किया ऑफ ऑर्डर 2 into 2 अकॉर्डिंग टू द गिवन मैट्रिसेस. देन वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस ऑन लेफ्ट साइड. तो हमारे पास a प्लस 4b 2a प्लस 5b 3a प्लस 6b c प्लस 4d 2c प्लस 5d 3c प्लस 6d है. दैन बाय कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने a की वैल्यू 1, वी गेट द वैल्यू ऑफ a 1, b -2, c 2 एंड d 0. सो थैंक्स. रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ द मिसलिनियस एक्सरसाइज यू कैन ट्राई योरसेल्फ. ये क्वेश्चन वही किए थे जो कुछ डिफरेंट है.